بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم کتاب سنن نبی داؤد کا سبق نمبر 19 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے شکار کے لیے سدھائے ہوئے کتے اور تیر کا بیان، یعنی کہ باب فی الصید۔ کل ہم نے اس کا کچھ حصہ پڑھا تھا، آج انشاءاللہ اسی باب کو آگے تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو پہلے حدیث کی عبارت دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا هناد بن سري قال حدثنا ابن فضيل عن بيان عن عامر عن ابي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت إنا نصيد بهذه الكلاب فقال لي إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكنا عليك وإن قتل إلا أن يأكل الكلب وإن أكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه۔ تو دیکھیے یہاں پر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ان سدھائے ہوئے سکھلائے ہوئے کتوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو شکار پر سکھائے ہوئے کتوں کو اللہ کا نام لے کر چھوڑے تو اس کو کھا، اور جو اس نے تیرے لیے پکڑ رکھا ہو اگرچہ وہ کتا اس جانور کو جان ہی سے کیوں نہ مار ڈالے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ اس میں سے نہ کھائے، اور اگر کتا اس میں سے کھا لے تو پھر اس شکار کو مت کھا، کیونکہ اس صورت میں احتمال ہے کہ شکار اس نے اپنے لیے پکڑا ہو۔ اگلی حدیث دیکھیے۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن عاصم الاحول عن شعبيشي عن عديش بن حاتم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فوجدته من الغد ولم تجده في ماء ولا فيه اثر غير سهمك فكل فاذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل لا تدری لعلہ قتلہ الذی لیس منہا۔ تو دیکھیے یہاں پر حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے اللہ کا نام لے کر شکار پر تیر پھینکا اور اس کو اگلے دن پایا، یعنی شکار تیر کھا کر بھاگ نکلا اور اگلے دن ملا لیکن پانی میں نہیں پایا اور اس پر تیرے تیر کے سوا کسی اور چیز کا نشان نہیں پایا گیا تو تو اس کو کھا، اور اگر تیرے کتے کے علاوہ اس کے شکار میں کوئی دوسرا کتا بھی شامل ہو گیا تو پھر مت کھا، کیونکہ تو نہیں جانتا اس کو کس نے مارا ہے، ممکن ہے اس کو اس کتے نے مارا ہو جو سدھایا ہوا نہیں تھا۔ تو دیکھیں یہاں پر ولم تجدہ فی ماء ولا فیہ اثر غیر سہمک، تو اس حدیث میں یہ اصول نکالا گیا ہے کہ جب موت کے دو سبب پائے جائیں، ایک سبب حلت کا اور دوسرا سبب حرمت کا پایا جائے تو پھر شکار نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ اس بات کا احتمال موجود ہے کہ موت اس سبب سے واقع ہوئی ہو جو حرمت کا باعث تھا، اس لیے اس احتمال کی بنا پر شکار کو چھوڑ دیا جائے گا، نہیں کھایا جائے گا۔ اگلی حدیث دیکھیے۔ وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة قال أخبرني عاصم الأحول عن شعبيشي عن عديش بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت رميتك في ماء فغرق فمات فلا تأكل۔ یہ بھی حضرت عدی بن حاتم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرا تیر کھایا ہوا شکار پانی میں گر کر ڈوب جائے اور مر جائے تو پھر اس کو مت کھا۔ تو دیکھیے اگلی حدیث اب ہم پڑھتے ہیں۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن عديش بن حاتم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما علمت من كلب او باغ ثم ارسلته وذكرت اسم الله فكل مما امسك عليك قلت وان قتل قال اذا قتله ولم يأكل منه شيئا إنما أمسكه عليك قال أبو داود الباز إذا أكل فلا بأس به والكلب إذا أكل كره وإن شرب الدم فلا بأس به۔
ये भी हजरत आदी बिन हातिम की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कुत्ते या बाज को तूने शिकार की तालीम दी और फिर इसको अल्लाह का नाम लेकर शिकार पर छोड़ा तो तू इस शिकार को खा जिसको इसने तेरे लिए पकड़ रखा हो। आदी बिन हातिम फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, खा इस कुत्ते या बाज ने इसको जान से मार डाला हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इस कुत्ते या बाज ने इसको जान से मार डाला मगर खुद इसमें से कुछ नहीं खाया तो खुद इसमें से कुछ नहीं खाया तो गोया इसने इसको तेरे ही लिए पकड़ा था, इसलिए ये हलाल होगा। यानी उसने मालिक के लिए पकड़ा है वो, तो वो मालिक के पास लेकर आ गया, और अगर उसने से खुद खा लिया तो मतलब ये होगा कि उसने वो अपने लिए किया था, मालिक के लिए नहीं किया था। अगर ये हालत हो तो फिर मालिक को इजाजत नहीं है खाने की, लेकिन अगर उसमें से कुछ नहीं खाया तो फिर मालिक को इजाजत है खाने की। अब अगली हदीस देखिए, वही क़ाल हद्दसना मुहम्मद बिन ईसा क़ाल हद्दसना हुशैम क़ाल हद्दसना दाऊद बिन अम्र व अन बुस्र बिन उबैदिल्लाह अन अबी इद्रीस अल-खौलानिशी अन अबी सअलबत अल-खुशनीशी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी स्वैदिल कल्बि इज़ा अरसलता कल्बका व ज़करता इस्मल्लाहि फकुल व इन अकला मिन्हु व कुल मा रद्दत अलैका यदाका। हज़रत अबू सालबा खुशनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकारी कुत्ते के जरिए शिकार के मुतालिक फरमाया कि अगर तूने अपने कुत्ते को शिकार पर अल्लाह का नाम लेकर छोड़ा और इसका किया हुआ शिकार खा लिया, अगरचे इसने भी इसमें से खा लिया हो, इसी तरह इस शिकार को खा जो तू तीर से मारे। देखिए यहाँ पर फरमाया कुल मा वद्दत अलैका यदाका, और खा तू इसको जो कुछ इसने तेरे हाथ में छोड़ दिया है। इसका दूसरा माना ये है कि तेरा हाथ यानी तेरा तीर जो शिकार करे, यानी जो तेरे तीर से शिकार हुआ है उसको तू खा ले। अगली हदीस देखिए, वो भी क़ाल हद्दसना हुसैन बिन मुआज़ बिन कुलैफ क़ाल हद्दसना अब्दुल आला क़ाल हद्दसना दाऊद अन आमिर अन अदीश बिन हातिम अन्नहु क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदुना यरमी स्वैदा व यक्तफी अथरहु al-यawमैन व सलासता थुम्मा यजिदुहु मशीतन व फीही सहमुहु अन यअकुलु क़ाल नअम इन शाअ औ क़ाल यअकुल इन शाअ। ये भी हजरत आदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है। फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम में से एक शख्स शिकार को तीर का निशाना बनाता है और 2 या 3 दिन तक इसको ढूंढता रहता है और फिर इसको मुर्दा हालत में पाता है, मगर इसके जिस्म में इसका तीर गड़ा हुआ मिलता है, यानी ढुका हुआ मिलता है, तो क्या वो इसको खाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगर वो चाहे, या ये फरमाया अगर चाहे तो खा सकता है। ये हदीस देखिए, वही क़ाल हद्दसना मुहम्मद बिन कसीर क़ाल हद्दसना शुअबतु अन अब्दुल्लाह बिन अबी सफ़र अन शअबीशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल अदीश बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सअलतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल मिक़वाज फ़क़ाल इज़ा असाबा बिहद्दिही फ़कुल व इज़ा असाबा बिअरज़िही फ़ला तअकुल फ़इन्नहु वक़ीज़ुन क़ुल्तु उरसिलु कल्बी क़ाल इज़ा सम्मैता फ़कुल व इल्ला फ़ला तअकुल व इन अकला मिन्हु फ़ला तअकुल फ़इन्नमा अमसका लिनफ़्सिही फ़क़ाल उरसिलु कल्बी फ़अजिदु अलैहि कल्बन आख़र फ़क़ाल ला तअकुल लिअन्नका इन्नमा सम्मैता अला कल्बिका। ये भी हज़रत आदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है। फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेराज यानी बेपर का तीर उसके बारे में सवाल किया, यानी क्या इसके जरिए किया हुआ शिकार हलाल है या नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो तीर अपनी तेजी से लगा तो तू खा, और अगर टेढ़ा होकर लगा तो मत खा, क्योंकि इस सूरत में वो मौकूजा यानी चोट खाकर गिरा हुआ मुराद होगा, जो कुरान की रूह से हराम है। हजरत आदी बिन हातिम फरमाते हैं कि फिर मैंने पूछा कि मैं अपने कुत्ते को शिकार पर छोड़ता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तूने बिस्मिल्लाह पढ़कर छोड़ा था तो तू खा, वरना नहीं, और अगर कुत्ते ने शिकार में से खा लिया हो तब भी मत खा, क्योंकि इस सूरत में इसने अपने लिए शिकार किया था, ना कि तेरे लिए। फिर मैंने पूछा कि मैं शिकार पर अपना कुत्ता छोड़ता हूँ और फिर दूसरा कुत्ता भी पाता हूँ, इस सूरत में क्या हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना खा, क्योंकि तूने बिस्मिल्लाह अपने कुत्ते पर पढ़ी थी, ना कि दूसरे कुत्ते।
देखिए फला ताकुल फइन्नहु वकीज़ुन, इसका ये मतलब है कि बस ना खा इसलिए कि वो चोट से मरने वाला है, यानी इसमें गुमान है कि वो तेरे तीर से नहीं मरा, वो चोट की वजह से मर गया है, इसलिए चोट के वक्त को बिस्मिल्लाह भी नहीं पड़ी गई, इसलिए ये तेरे लिए हलाल नहीं है। देखिए वो भी क़ाल हद्दसना हन्नाद इब्न सरीशी अन मुबारकी अन हयवत इब्न शुरैह क़ाल समिअतु रबीअत इब्न यज़ीद अद-दिमश्की यक़ूलु अख़बरनी अबू इदरीस अल-ख़ौलानी आइज़ुल्लाह क़ाल समिअतु अबा सअलबत अल-खुशनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यक़ूलु क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी असीबु बिकल्बिल मुअल्लमी व बिकल्बि लज़ी लैसा बिमुअल्लमिन क़ाल मा सिबत बिकल्बिकल मुअल्लमी वज़कुर इस्मल्लाहि वकुल मा असबत बिकल्बिकल लज़ी लैसा बिमुअल्लमिन फअदरकत ज़कातहु फकुल। देखिए हज़रत अबू सअलबा खुशनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं सिखाए हुए कुत्ते के जरिए शिकार करता हूँ और ऐसे कुत्ते से भी जो कि सुधाया हुआ नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तू अपने सिखाए हुए कुत्ते के जरिए शिकार करे तो तू इस पर बिस्मिल्लाह पढ़ और खा, और अगर तू गैर सुधाए हुए यानी गैर सिखलाए हुए कुत्ते के जरिए शिकार करे तो इसके ज़िबा को पाए यानी शिकार को जिंदा पाए और फिर ज़िबा करे तो तू खा वरना नहीं, यानी अगर उसको मुर्दा हालत में पाया तो फिर जायज नहीं है खाना, लेकिन अगर उसको इस हालत में पाया तो उसके अंदर जिंदगी के कुछ आसार मौजूद हैं यानी जिंदगी मौजूद है, फिर उसको शरई तरीके से ज़िबा किया जाएगा और फिर वो जायज हो जाएगा। अगली हदीस देखिए वही क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न मुसफ़ा क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न हर्ब तहक़ीक़ व हद्दसना मुहम्मद इब्न मुसफ़ा क़ाल हद्दसना बक़िय्यतु अन ज़ुबैदी क़ाल हद्दसना यूसुफ इब्न सैफ़ी क़ाल हद्दसना अबू इदरीस अल-ख़ौलानी क़ाल हद्दसनी अबू सअलबत अल-खुशनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबा सअलबत कुल मा रदत अलैका कौसुका व कल्बुका ज़ादा अन इब्न हर्बिल मुअल्लम व यदुका फकुल ज़कीयन व गैर ज़कीयन। देखिए अबू सअलबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए अबू सअलबा, इस जानवर को खा जो तू अपने तीर से शिकार करे या कुत्ते के जरिए शिकार करे। इब्न हर्ब की रिवायत में कुत्ते के साथ यानी सुधारे होने की शर्त जिक्र की गई है और तीर के बजाय हाथ का जिक्र किया गया है, बस खा इसको ज़िबा किए हुए या बगैर ज़िबा किए हुए। तो देखिए यहाँ पर फकुल ज़कीयन व गैर ज़कीयन, इसके दो माना जिक्र किए गए हैं। एक माना ये कि ज़की से मुराद जिसको तू जिंदा पाकर ज़िबा करे, ये माना है, और गैर ज़की से मुराद जिसको ज़िबा इख्तियारी करने का मौका ना मिला हो बल्कि उसको इस्तिरारी तौर पर ज़िबा किया गया हो। दूसरा माना ये है कि ज़की से मुराद जिसको कुत्ते ने अपने पंजे वगैरह से जख्मी कर दिया हो, और गैर ज़की से मुराद जिसने इसको जख्मी न किया हुआ हो। ये इसके जो कि चंद माना यहाँ पर जिक्र किए गए हैं। अगली हदीस देखिए वही क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न मिनहाल ज़रीह क़ाल हद्दसना यज़ीद इब्न ज़ुरैक़ क़ाल हद्दसना हबीब अल-मुअल्लम अन अम्र इब्न शुअैब अन अबीही अन जद्दिही अन्न अराबियन युक़ालु लहु अबू सअलबत क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना ली किलाबन मुकल्लबतन फअफ्तिनी फी सैदिहा फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कान लका किलाबुन मुकल्लबतुन फकुल मिम्मा अमसकना अलैका क़ाल ज़किय्यन औ गैर ज़किय्यिन क़ाल नअम क़ाल फ़इन अकल मिन्हु क़ाल वइन अकल मिन्हु फ़क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ्तिनी फी कौसी क़ाल कुल मा रदत अलैका कौसुका क़ाल ज़किय्यन औ गैर ज़किय्यिन क़ाल इन तग़य्यब अन्नी क़ाल वइन तग़य्यब अन्का मा लम यग़िल्ल औ तजिद फ़ीही असवन गैर सहमिका क़ाल अफ्तिनी फी आनियतिल मजूसी इन इज़्तुरिफ़ना इलैहा क़ाल अग़सिलहा व कुल फ़ीहा। देखिए यहाँ पर हजरत आमिर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आराबी ने यानी देहाती ने जिसका नाम अबू सअलबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास शिकार के सिखाए हुए कुत्ते हैं, आप इनके शिकार के बारे में इरशाद फरमाइए।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तेरे पास सुधाए हुए शिकार के कुत्ते हैं तो तू इस जानवर को खा जिसको उन्होंने तेरे लिए पकड़ा हो। अबू सालबा ने फरमाया, खा इसको ज़िबा कर सकूं या ना कर सकूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। अबू सालबा ने पूछा, क्या कुत्ते इस शिकार में से खा लें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगरचे वो इसमें से खा लें। फिर उन्होंने अर्ज किया, मेरे तीर कमान के जरिए शिकार के मुतालिक भी हुक्म इरशाद फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तीर कमान तुझ पर लौटाए इसमें से खा ज़िबा किया हो या ना किया हो। फिर पूछा, अगर वो शिकार मेरा तीर खा कर मेरी नजरों से गायब हो जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगरचे वो तेरी नजरों से गायब हो जाए, जब तक सड़े नहीं और तेरे तीर के अलावा कोई और चोट इस पर जाहिर ना हो। तो साइल ने फिर पूछा कि मजूसियों के बर्तन के बारे में भी इरशाद फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको धो लो फिर इसमें से खा लो। देखिए, इन्ना ली किलाबन मुकल्लबन, इसका मतलब है मेरे पास सुधाए हुए कुत्ते हैं, यानी अबू सालबा फरमा रही हैं कि मेरे पास लाए हुए कुत्ते हैं। देखिए यहाँ पर फरमाया, व इन तगय्यब अन्का मालम यसिल्ला। तो देखिए यहाँ पर मालम यसिल्ला का एक माना ये है कि जब तक किसी गैर का तीर किसे ना पहुंचा हुआ हो, और दूसरा माना ये है, अल्लामा खत्ताबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि सल्ला यसिलु लाम की तशदीद के साथ है, यानी जब तक वो बदबूदार ना हो गया हो, यानी अगर वो शिकार पड़ा रहा, शिकारी तलाश में रहा, जब मिला तो सड़ चुका और बदबू छोड़ गया, तो अब इसका खाना जायज नहीं है, क्योंकि मुमकिन है कि किसी जहरीले जानवर ने इसे काट लिया हो और वैसे भी बदबूदार हो गया, तब भी खाना मुनासिब नहीं है। आगे फरमाया, अफ्तिनी फी आनियतिल मजूसी, यानी इससे वो बर्तन मुराद हैं जिसमें वो खिंजीर का गोश्त पकाते हो या जिनको शराब वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हो। तो इसलिए मजबूरी के तहत, अगर मजबूरी हो तो फिर धोने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना अगर मजबूरी नहीं है तो फिर इनके अलावा दूसरे बर्तन धोने के बगैर मजबूरी के भी इस्तेमाल बिला कराहियत जो है हो जाए। यानी कि अगर ये मजबूरी नहीं है तो इसके अलावा दूसरे बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए, इन बर्तनों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर मजबूरी है तो फिर धोकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये सबके नजदीक बिला कराहियत जायज। हमारा आज का सबक यहाँ मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।